One right is standing for your personal morals, your personal obligation, your personal principles, whatever you have created throughout the span of time. And the other right is the corporate morals, what your organization is expecting you to do. So, whenever there would be an ethical choice or an ethical dilemma, there would be a landlocked situation. Landlocked situation in the perspective, it could be that you are aiming for the societal gain, you are following the utilitarianism argument and you're looking at the gain of the public. ठीक है, योर पर्सनल मॉरल सेज कि मेरे को सेल्फिश नहीं होना, मेरे को सबके हित में सोचना है, बट कंपनी गेन कह रहा है कि नहीं, मेरे को तू सिर्फ अपने बारे में सोच, तू सिर्फ कंपनी के बारे में सोच, बाकी लोगों के बारे में मत सोच. वन सच एग्जाम्पल इज, imagine CEO of a company comes in and he wants to actually fire 1000 employees. ठीक है, and you are the CEO, the board of directors tell you कि भाई 1000 employees को फायर कर दो. आपका पर्सनल प्रिंसिपल हो सकता है कि किसी से भी किसी की एम्प्लॉयमेंट ना ली जाए विदाउट अ जस्टिफाइड रीजन. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है, वी आर नॉट हैप्पी विद द पेस वी आर गोइंग विद, हमें आगे फंडिंग उठानी है, वी वांट टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, हटा दो, दे आर डेड वेट. व्हाट शुड यू गाइज डू? शुड यू रिमूव देम? शुड यू रिमूव द एम्प्लॉयज गाइज? आप क्या करोगे? Ideally, through company policy, if those are your guiding principle, you should. But that would not lead for the best outcome for the company. Why? Because once you are removing employees like this, जो बाकी employees आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक बार बंद कर देना. ठीक है मैं कर दूँगा. जो बाकी employees वहाँ पे काम कर रहे हैं, they would not believe that they have job security. When they do not believe they have job security, their productivity would be affected, and the problem which you were facing of profitability, that would reduce ultimately. We are going to discuss all such scenarios. In the slides, I have tried to keep pointers. ठीक है? We will not be discussing, we will have discussions about it, क्योंकि ये जो particular topics हैं इनमें discussion ही होगा. अगर आपके SLM में भी जो pointers है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए आराम से आप समझ सकते हो, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक. ठीक है, तो to say the presentation explore the ethical dilemmas employees encounter in the modern business world. Navigating these challenges require a strong ethical compass and commitment to upholding moral principles. What are the moral principles we are talking about, and why are we discussing these moral principles today? Why is ethics being taught you in third semester of MBA? क्या HR जब ट्रेन कराता है आपकी एथिक्स की क्लासेस होती है? अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, डू यू फील कि जब बंदे को CEO बनाते हैं, CFO बनाते हैं, वहाँ पे एथिक्स की क्लास हो रही होती है? तो आज आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है एथिक्स? Okay, she says that we want to understand and formulate a difference, and we have to articulate that difference between personal ethics and business ethics. She says business and personal ethics are not the same. Another reason for doing the same is that we want to make you more conscious as individuals. When I talk about making you more conscious as individuals, I'm talking about whenever you are in such a landlocked situation, ठीक है, you are able to distinguish which right is better for overall benefit of the society or for the company or for you. Sometimes personal gain can also lead to an ethical choice. It is not always that personal gain cannot lead to an ethical choice. In politics, it is always personal gain which leads to ethical outcome. आप किसी भी MLA के पास जाओ, आप कहो कि मेरे को रोड बनानी है, वो पर्सनल सोचता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वहाँ से वोट आ जाएगा, रोड बन जाती है. द ड्राइविंग फोर्स इज पर्सनल गेन, बट
the outcome is very ethical, right? Why do we need to discuss ethics in modern day business? What has happened after 91 कि हमें ethics की ज़रूरत पड़ने लग गई? उससे पहले तो कभी ethics की बात ही नहीं हुई. Okay. She's saying that at a workplace you have human beings, ठीक है, and you want to understand their psyche so that you can channelize their energy in an effective manner. तो 91 से पहले भी human beings ही होंगे वैसे. Only for India. Okay. So she's saying a right thing. Most of the businesses before 91 were state owned. State owned businesses में you do not need to talk about ethics अलग से, because the state assumes कि अगर हमने किसी भी employee को रखा है employment पे, that person is very ethical. And the private owned businesses were also not of much larger scale. Second, there was no infusion of culture. जो भी हमारा culture था, that was very intact because there was no globalization. People were not staying abroad. आज के time पे there is an upsurge of 32% Indians traveling abroad. मतलब अगर पिछले साल 100 लोग गए थे तो अब 132 लोग जा रहे हैं. So you see that the borders have actually dropped down completely. The whole world is one canvas. So now comes the case, because if there is a canvas, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं एक साथ मिलेंगी. So to streamline that process is very important. That is why in modern day you're talking about. And modern businesses are at much larger pace. अगर आप पहले देखोगे, you would not see so many rich people coming from India. There were 15-20 families. जब भी आप गाने भी सुनोगे तो बिरला, टाटा सब एक ही की बात कर रहे हैं. But today new families are coming up. ठीक है, they have immense amount of potential, immense amount of money. We just want an ethical output from them. ठीक है. What could be the sources of conflict of interest? हमने कहा जब भी ethical dilemma होगा conflict of interest आएगा. क्या क्या source हो सकते हैं conflict of interest के? We say that there are three major sources. One is personal gain, other is favoritism, ठीक है, and both of this causes a challenge called impartiality challenge. What is personal gain? Personal gain is a situation where an employee personal interests clash with the best interest of the company, such as accepting gift from supplier, using company resources for personal gain. I want to ask you, if you actually formulate the timeline of this personal gain as a conflict of interest, is it a new thing? अगर आप लोगों ने पहले के टाइम पे कभी भी बुक्स भी पढ़ी होंगी तो ब्रिटिश इंडिया में भी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, दे यूज्ड टू टेक ब्राइब्स एज अ गिफ्ट. एंड उसके बाद 1857 में कंपनी एक्ट आई. कंपनी एक्ट ने यही बोला कि कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर ब्राइब या गिफ्ट लेते हुए पकड़ा गया तो उसे वापस यूके लिए आया जाएगा. ही विल नॉट स्टे इन इंडिया. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज ऑफ द सिस्टम. हाउ कैन यू रिड्यूस इट इन टूडेज वर्ल्ड? क्या? By so that is a very sweet thing to say. Somehow we can't reduce this. It's like everyone has their own perspective and mindset. अगर किसी को कुछ benefit मिल रहा है तो how can he or she say no? Okay, but why is it existing mainly at grassroots level in our country, but when you talk abroad it is not present at grassroots level?
Okay. One reason would be like in abroad they get as much they want. Like in India, the professions there, like हम जाते हैं office में and we work for them, but we do not get salary as our capability. Like तो हमें हमारे हिसाब से नहीं मिलता है. और abroad में the person desire to want to buy और कुछ भी खरीदना चाहता है तो उसे उसकी सैलरी मिलती है. He can satisfy his needs. But India में वो नहीं होता है and people have their personal choices. They want more. तो इसलिए हो सकता है कि ये ज़्यादा prevalent है India. So the whole concept of personal gain arises because of two factors. Number one is personal choices, which she has said, but it is partially true and partially not true. Partially true, yes, there people are able to buy house, car and stuff, but our metric of comparison is always India. Our metric of comparison is not something abroad. For example, most of the people would say that in Canada, if you're driving a truck, you can easily own a car. Indian truck drivers are not able to own a car. Indian truck drivers are not living in Canada. कनाडा में कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स ही तो रह रहे हैं, तुम सबके पास ही कार है. सो हैविंग अ कार इज नॉट अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देयर. यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं कि अगर यहाँ पे हम ट्रक चलाएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ चलाएंगे तो मज़ा आएगा. पर वहाँ पे जब चला रहे हो तो आप उसी कम्युनिटी में रह रहे हो ना, यू वुड अस्पायर मोर. आप वहाँ पे जो कंपैरिजन करोगे इंडिया के साथ तो नहीं करोगे, आप कंपैरिजन थोड़े टाइम के बाद वहीं के लोगों से करोगे. अगर आप रिलेटिवली देखो तो सिचुएशन इकोनॉमिकली इज सेम ओवरऑल. Of course, because they're developed countries, they have better infrastructure. Because of the less population, they have better facilities. So they say the major source of personal gain problem comes from personal ethics. It is not that economic incentives are less. Economic incentives can develop with time. And वैसे भी अगर आप किसी country में economic incentive develop करोगे तो it cannot happen during a short span of time. It will take time. But personal ethics is one major reason. People are not able to convert their personal ethics into business ethics. One such example could be honesty. Honesty, if you take it as a personal bias, it's a very strong personal bias. When you take it to business, in business, what do we mean by honesty? मतलब अपने काम के प्रति अच्छा होते हैं, गुड बिहेवियर होते हैं. Usually recording every Okay. प्रॉफिट बनाओ अपने बिजनेस So, तो आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी, जब आपसे सिर्फ ऑनेस्टी बोला गया, सबने एक अलग डेफिनेशन दी ऑनेस्टी की. बिजनेस में भी ये सारी डेफिनेशंस एग्जिस्ट करती है. अगर आप कह रहे हो अपने स्टेक होल्डर से ऑनेस्टली इंफॉर्मेशन फर्निश करना, यस. प्रॉफिट बनाना अपने बिजनेस में तमीज़ से, मतलब बाई पेइंग द टैक्सेस, फॉलोइंग एवरी कंप्लाइंस, यस इट इज़ ऑनेस्टी. ठीक है. शी सेड के अपने बिजनेस में सच्चा रहना, यू बी ट्रू टू योर सेल्फ, मतलब नॉट इंडल्जिंग इन प्रोडक्ट्स विच आर नॉट ऑफ गुड स्टैंडर्ड्स. तो ऑनेस्टी भी डिपेंड करेगा आप किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो एंड व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है. एक कंसल्टिंग फर्म और एक सेल्स फर्म, दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होगा, तो उनकी जो डेफिनेशन होगी ऑनेस्टी की वो बहुत डिफरेंट होगी. कंसल्टिंग का ये होगा कि अगर मैंने अपने क्लाइंट से 10 लाख रुपए लिया तो मैं उसे कम से कम 10 लाख का काम दूँ. सेल्स फर्म का होगा कि अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट उठाया है तो मैं उसे अच्छे सेल्समैन दूँ, उसे अच्छा प्रोडक्ट दूँ. वहाँ प्रोडक्ट ऑफर हो रहा है, वहाँ सर्विस ऑफर हो रही है, तो दैट डेफिनेशन चेंजेस. कैन वी इंक्रीज पर्सनल एथिक्स इन द सोसाइटी? इज इट पॉसिबल? हाउ कैन वी डू दैट? अगर पर्सनल एथिक्स इंक्रीज हो जाएंगे तो पर्सनल गेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. नॉट कंप्लीटली, it would reduce by a certain amount.
Even if we are able to reduce it by 35%, it will have an overall impact on the economy. How do we reduce it? One such thing is we have inculcated punishments in the society. Taking bribe is not legal, right? Guys, do you think that we should legalize taking bribe? Just imagine, फायदा कितना होगा? ब्राइब लो, 30% टैक्स दे दो ब्राइब का, जितनी मर्जी उतनी लो. क्या? तो अभी कौन सा एथिकल है सोसाइटी? ले तो अभी भी रहे हैं. अरे तो एक बात सोचो, अगर ब्राइब की तुमने फ्री मार्केट कर दी, माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर, सप्लाई डिमांड, अपने मन की ब्राइब तो अभी भी नहीं ले पाते. क्यों सर? बात सच नहीं है? अभी भी पूरा होता है ना, वो 1 लाख मांगता है, मैं कहूँगा सर नहीं 20,000 का काम है. इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी. है इन्फ्लेशन सर, इन्फ्लेशन तो अभी भी है. आप सोचो ना, वो पैसा सारा जा कहाँ रहा है? अभी भी है मैम. अच्छा, टेल मी वन थिंग, डू यू पीपल, एक मिनट, तुम्हें लग रहा है कि ब्राइब लीगल नहीं है तो अब बंदा ले नहीं रहा, बस उसे अब टैक्स देना पड़ेगा, ये सोचो. फिर अगर कोई ब्राइब टैक्स देते हुए भी ब्राइब कर देगा तो क्यों देगा? है. फिर वो बोलेंगे कि ड्राइव में भी टैक्स लग रहा है, वो भी जोड़ के देते हैं. चलो एक सिनेरियो लेते हैं हाइपोथेटिकल, बहुत छोटा सा, 1 मिनट के लिए. इमेजिन करो कि मुझे कोई काम कराना है, ठीक है, मुझे किसी को 1 लाख रुपए देने हैं. तो अब मैं जब ब्राइब दूंगा तब मैं कहूँगा कि सर इसे लीगल कराने की फीस आपकी है, मैं तो एक ही दे सकता हूँ. पर तुम ओवरऑल सोचो, पहले जब कोई ब्राइब लेते हो पकड़ा जाता है, अब तो हम क्या कहते हैं, भाई तेरी किस्मत खराब थी क्योंकि तू पकड़ा गया, बाकी नहीं पकड़े जा रहे. आफ्टर इट इज लीगलाइज्ड, जैसे, एंड आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, देयर इज अ कंट्री वेयर इट इज हैपनिंग एंड इट इज लीगलाइज्ड, इट्स कॉल्ड यूएसए. लॉबिंग इज लीगल. एक बार अगर आप लोगों को पता है लॉबिंग क्या होती है, इट इज कंप्लीटली लीगल. इंडिया में भी लीगल है सर. नहीं, लॉबिंग लीगल है पर उसके कुछ नहीं कर सकते, पैसे को कुछ नहीं कर सकते. हाँ तो फिर फायदा क्या है? मतलब आप बिजनेसेस को पुश कर सकते हो. बिजनेसेस को पुश कर सकते हो, इन्फ्लुएंस ग्रुप होते हैं, बट वो भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते. मतलब जितने भी सेंटर बने हुए हैं, स्पोर्ट्स सेंटर हैं, क्लब्स हैं, हाई एंड क्लब्स हैं, वो सारे लॉबिंग सेंटर्स हैं. नेटवर्किंग लॉबिंग सेंटर. एक बार यूएसए में क्या होता है कि बेसिकली जैसे मैं सेनेटर हूँ, ठीक है, मेरे पास एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया, उससे किसी फर्म एक्स को बहुत फ़ायदा होगा, तो वो फर्म एक्स वाला मुझे सीधा ऑफर कर सकता है कि मैं आपको इलेक्शन फंड में $1,000 दे दूंगा, आप मेरा काम कर दो. लीगल है ये. यहाँ पे भी पॉलिटिशियंस कुछ होते हैं जो पैसे लेते हैं, ठीक है, पर वो लीगली नहीं कर सकते. अभी इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा स्टार्ट हुआ, ठीक है, इन्होंने इतना अच्छा सोचा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स करेंगे, वो भी ड्रॉप डाउन कर गया, ठीक है. लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, फेवरेटिज्म, showing preferential treatment to certain individuals or group potentially leading to unfair advantages and compromised decision making. Can we reduce favoritism? Why does favoritism exist? Of what? डिमांड इज मोर. किसकी डिमांड मोर है? Okay, so she says that at entry level, when you're choosing a job, a person can get a job because of favoritism. ठीक है.
nepotism. But the main argument is nepotism wrong? Guys, is nepotism the evil it is said to be? Or are we guys jealous of people who are doing well? Are we jealous of Bollywood stars and we say that they have a nepotism element? मतलब honestly, अगर nepotism is not allowed, then inheritance should also not be allowed. ये जो पूरा लैंड प्रॉपर्टी सिस्टम बना हुआ है, प्रॉपर्टी राइट्स है, इंटेलेक्चुअल राइट्स है, सारे राइट्स को डाइल्यूट हो जाने चाहिए. अ सोशलिस्टिक सोसाइटी वुड नॉट वांट एनी प्रॉपर्टी राइट्स, राइट? ये जो आप जॉब राइट्स भी इंटेलेक्चुअल राइट्स ही तो एक तरीके से. सर मिलिट्री में भी नेपोटिज्म होता है, पर उसके बारे में मतलब वो जाना चाहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, लेकिन वहाँ कोई बात नहीं करता, तो बल्कि उसे अच्छा माना जाता है या एक जनरेशन. It exists everywhere, in every domain. Can we say nepotism is someone having more information about the process than the other person? So imagine if somebody's dad is an IPS officer, उनका बेटा है, of course वो एग्ज़ाम क्लियर करेगा बिल्कुल फेयर तरीके से UPSC. उसके बाद वहाँ पे काम कैसे करना है? He has more insight into that world than the other person, and when he has more insight, he would always perform better. Like imagine तुम्हें already एक गेम खेलना आता है and you're asked to play, you will always play better than someone who's playing it for the first time. Can we only put nepotism and this favoritism only based on something tangible? It could be information led also, and that is how insider trading came in. जो insider trading है, it is a information led process. आप कोई गुड नहीं दे रहे होते, आप उसे सिर्फ एक वाइटल इंफॉर्मेशन दे रहे हो गेन के लिए, एंड दैट विल इंश्योर दैट ही हैज़ अ गेन, और वो जितनी भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है उसे स्क्यू कर देगी. द सेम थिंग इज हैपनिंग इन अ जॉब. इफ माई फादर इज अ कॉप एंड आई बिकम अ कॉप, ही टेल्स मी कि बेटा अगर ये केस आए तो ये करना, यहाँ सिग्नेचर लेना. व्हेन आई डू बेटर, आई एम ऑल्सो गेनिंग, एंड इट विल लीड टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन माई फेवर. Or are we assuming something wrong? हाँ हाँ, कैसे? See, many government agencies came with this, and to solve it, it was a very good measure. I don't know if it is effective now. They came with the panel system. Guys, quiet. मेरे पास माइक है नहीं और मेरे पास गले में इतनी शक्ति नहीं है, honestly. Please. आप कोई भी हाई एंड जॉब लोगे, ठीक है, whether you talk about a judge, you talk about UPSC, you talk about any board member private, there would be a group of individuals who will judge you. That is to decrease the partiality aspect and make the process impartial, to make the process fair. Now what has happened with the evolving time, जैसे businesses evolve हो गए, लोगों ने इस process को भी hijack कर लिया है. Rather than seeking help from one person, they have make groups, cartels. Okay, we 5 families will always look after each other, and they have taken over the process. So yeah, right now there is no process which is make favoritism less, but ideally a society should work on reducing personal gains and favoritism. एक और एग्जाम्पल पर्सनल गेन और फेवरेटिज्म रिड्यूस करने का हो सकता है, जितना भी आजकल इंडियन रेवेन्यू सिस्टम है, आधे से ज़्यादा हैज़ बिकम फेसलेस. फेसलेस का मतलब होता है कि किसी की भी फाइल जाएगी तो किसी को पता नहीं होगा कि वो फाइल किसकी एग्जैक्टली. तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो पैसे ही नहीं ले सकता. पैसा लेने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन भी तो चाहिए कि कमी कहाँ पे है. जब आपको कमी ही नहीं पता किसकी है तो आप किससे पैसे लोगे?
That is why systems are getting digital. RTO offices digital to reduce the tout system. ठीक है, स्कूल कॉलेजेस एडमिशन गवर्नमेंट डिजिटल लॉटरी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं डिजिटल आ रहे हैं. दिस इज द मेन रीजन. दे आर इंक्लूडिंग मशीन वेर एवर दे कैन. जितना ह्यूमन टच कम होता रहेगा इन चीज़ों में उतना पार्शियलिटी एस्पेक्ट कम हो जाएगा. राइट एंड गाइस कई बार ये पार्शियलिटी एस्पेक्ट कॉन्शियस भी नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में होता है, कई बार अच्छे मार्क्स बच्चे को उसकी राइटिंग पे मिलते हैं. हो सकता है इन सर ने बहुत अच्छे आंसर लिखे हो पर इनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी तो मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी. तो तुम्हें क्या लगता है एग्जामिनर क्या करता है वहाँ बैठ के? नहीं, वो जितना पढ़ता है उसे समझ आया, उसे नहीं समझ आया तो वो एफर्ट थोड़ी मारेगा 4 बार. वो दूसरी बार मारेगा, कहेगा चलो अब इसे साइड में रखो. सो दीज एलिमेंट्स आर समटाइम कॉन्शियस एंड समटाइम दे आर नॉट कॉन्शियस. ठीक है बेटा, करना तो चाहिए पर एथिकली तो उसे, हाँ एथिकली तो उसे रिजल्ट भी टाइम से देना चाहिए ना. वही तो बात है. वहाँ पे एक एग्जामिनेशन हॉल में एक बंडल होता है 25 कॉपी का. मेरे को एक कॉपी पे 15 मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट पूरा पढ़ने वढ़ने में. मैं हर वर्ड को पढ़ता हूँ. अब सोचो 765 कॉपीज को करने में कितना टाइम लगेगा. तो जब पेपर चेक करने वाले दिन आते हैं तो मैं रात दिन सिर्फ पेपर ही चेक कर रहा होता हूँ. तो अब उसमें आप सोचो कि कोई बच्चे ने लिख नहीं रखा, मैं क्या करूँ? राइट लेफ्ट सब करके देख लिया, पता ही नहीं. एक बार तो एक बच्चे ने ऐसे फ्लो में कुछ लिख रखा, उसने एक नई स्क्रिप्ट बना रखी, समझ ही नहीं आ रहा मुझे. जैसे अगर आप ऐसे लिखते हो यू राइट हाय, ठीक है, उसने ऐसे लिखा, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या था पर उसने कुछ लिख रखा था. तो जितना मेरा ब्रेन समझ पाया मैंने उतना कर दिया. That happens. One more challenge is impartiality challenge, which says that our decision should not be influenced. और जो भी हम resource allocation करते हैं वो fair हो. It is very difficult to have a fair resource allocation. Why? The one more challenge which I have not written here is not only impartiality challenge. Fairness is very subjective. It's not an objective term. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दैट 2 people. एक बच्चे का बॉडी वेट 70 kg है, दूसरे बंदे का बॉडी वेट 110 किलो है. आई हैव 2 plate ऑफ बिरयानी. शुड आई डिस्ट्रीब्यूट इट 1 plate? हाउ डू आई मेक दैट डिस्ट्रीब्यूशन? अरे बताओ यार, ये तो इजी है बिल्कुल. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करी. उसके बाद उनमें से जो बच्चा था 70 वाला, वो आया, वो कह रहा सर मैं तो 2.5 plate खाता हूँ, मैं भूखा रह गया. और वो 110 वाला बच्चा आया, वो कह रहा कि सर मेरे को तो सिर्फ एक ही प्लेट चाहिए, मेरा 1 plate में पेट भर जाता है. अब as per that kid of 110 kgs, I have made a fair distribution because his needs are satisfied. पर as per the 70 अगर मैं उसे दोनों प्लेट भी दे दूंगा तो भी it would be unfair. उसकी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी. तो प्रॉब्लम इस आर्ग्यूमेंट में ये भी है कि फेयरनेस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टर्म, इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर. What might be fair for me might not be fair for you. Right? Let's talk about whistle blowing. What is whistle blowing? सीटी मारना मत बोलना. सर किसी भी अगर गलत हो रहा हो उसके ऑर्गेनाइजेशन. Okay. So he says that whistle blowing
is whenever something wrong is happening, you take it into account and you tell about it. ठीक है? We will discuss 3 elements in whistleblowing. One is ethical consideration. मतलब आपको आवाज़ उठानी है नहीं उठानी वो कैसे डिसाइड करोगे? तो as per the slide it is weighing the potential benefits of exploring the wrongdoing against the potential risk to oneself and the organization. इसका मैंने लास्ट ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस किया था. लेट मी आस्क यू एन एग्जाम्पल. सपोज आपकी फर्म है, इन्होंने एक लोन लिया आपकी फर्म ने बहुत हैवी, उससे आप अपने 1000 एम्प्लॉयज़ को दो मंथ की सैलरी दे सकते हो. पर अगर आपने विसल ब्लो कर दिया, आपका जो ओनर है ही इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड, ठीक है, अगर आपने विसल ब्लो कर दी इस प्लान पे, यू टोल्ड इट टू द इनकम टैक्स, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी एंड 1000 पीपल विल बी अनएम्प्लॉयड, जिसमें से कुछ के बच्चे स्कूल जाते होंगे, किसी के पेरेंट्स को हॉस्पिटल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, विच मीन दैट दे रिक्वायर मनी एंड ऑल ऑफ दैट प्रोसेस. अगर आपने विसल ब्लो नहीं करी तो सारा पैसा बाहर चला जाएगा. व्हाट शुड यू डू? Should you blow the whistle or not? How many of you say yes? कि हमें बताना चाहिए. क्या मैम? नहीं, एथिकल बंदा है, पर्सनल गेन क्या देख रहा है बेचारा. एथिकल है वो तो, बड़ा एथिकल सा है, प्यारा सा बच्चा है आपकी तरह. वो सोच रहा है चली जाए सैलरी, आग लगाओ ऐसी नौकरी को. बट इट इज़ नॉट अबाउट हिम ओनली, इट इज़ अबाउट दोज 999 अदर एम्प्लॉयज विच विल गो कैशलेस. व्हाट शुड वन डू? ऑनेस्टली ही शुड टेल गाइज. जो वो पैसा आया है वो कोई 1000 बंदों का पैसा नहीं है, वो एक पूरी सोसाइटी का कलेक्टिव फंड है. द यूटिलिटेरियनिज्म आर्ग्यूमेंट सेज दैट यू हैव टू लुक एट द यूटिलिटी ऑफ द मेजॉरिटी एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट द माइनॉरिटी वुड बी अनएम्प्लॉयड आफ्टर 2 months. द प्रॉब्लम इज के इस आर्ग्यूमेंट को जो प्रेजेंट करते हैं वो ये कहते हैं कि कहीं और जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है. जब भी डिसरप्शन कॉज होती है, मेजॉरिटी पीपल गेट जॉब बट माइनॉरिटी विल नेवर गेट जॉब अगेन. इट विल टेक 6-7 months एंड दैट प्रोसेस विल मेक देम इकोनॉमिकली वीक. ठीक है, बट आइडियली ही शुड बी टेलिंग इट टू द पीपल. ठीक है. सेकेंड कम्स लीगल प्रोटेक्शन. सो अभी जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें वो क्या होता है, मैं आपको आराम से बताता हूँ. सपोज 7 बंदे हैं, दे डू अ वाइट कॉलर क्राइम, वी हैव नो टेंजिबल प्रूफ अगेंस्ट देम. ठीक है, एक विसल ब्लो करके आता है, एक कहता है कि मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, बट आपको मुझे उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी देनी पड़ेगी. मतलब आप मुझे एज अ क्रिमिनल ट्रीट नहीं करोगे, आई विल रिमेन अ फ्री सिटीजन. Should we give immunity to that one person? But he was also part of the crime. उसको मिनिमम प्रोटेक्शन तो देना ही पड़ेगा ना, एक मिनिमम तो देना पड़ेगा सो दैट वो हमारे पे ट्रस्ट कर सके एंड क्या? Exactly, we have to give. We do not have a choice. अगर 7 बंदे फ्री जाएंगे, you will have 7 wolves in the society. अगर एक बंदा फ्री जाएगा तो यू विल ओनली हैव 1 वुल्फ. थिंक अबाउट द मिनिमल डैमेज सिस्टम. अगर 7 बंदों के खिलाफ आपके पास कोई प्रूफ नहीं तो 7 के साथ रहेंगे फ्री. एंड व्हाट इज स्टॉपिंग देम टू डू अनदर क्राइम? दैट इज व्हाई दिस विसल ब्लोअर एक्ट केम. कि अगर किसी को भी किसी क्राइम का होना, क्योंकि सी अंडरस्टैंड, विसल ब्लोअर्स आर ऑलवेज पार्ट ऑफ द क्राइम. Some way or the other they are very deeply embedded in it. आपको कैसे पता चलेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ?
फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हम यहाँ पे ऑफलाइन क्लास कंडक्ट करें, ठीक है, मैं कहूँगी यहाँ पे मुझे क्लास चाहिए और इन 2 घंटे में आपको पढ़ाऊँ ना, ठीक है, और मैं आप लोगों के साथ पार्टी करूँ। एक दिन आप में से एक बच्चा कहता है कि नहीं बहुत हो गई पार्टी, अब चाहिए मार्क्स। वो चला जाता है HOD मैम के पास, कहता है कि मैम आई लाइक टू ब्लो द विसल। भाई जब वो पहली बार हुआ था तब भी तो तुमने कुछ नहीं बोला ना, बिकॉज यू वर पार्ट ऑफ दैट क्राइम। बट नाउ इफ यू डू नॉट टेक इम्यूनिटी, जैसे सबको पनिशमेंट मिलेगी जो भी है वो आपको भी मिलेगी, एंड यू डोंट वांट इट। If I want a person to feel comfortable enough to come to me, I have to give him some immunities, and that is where legal protection comes. The third point is internal versus external reporting. Internal reporting का तो हमने समझ लिया कि बंदा होता है, external reporting कब होती है? Okay, the one, हाँ हाँ गलत तरीके से पैसा दिखाया जा रहा है उसमें, बट जब मैं ये सामने आई थी तो मतलब पूरी पब्लिक को बताया गया, सारा ने ऐसा किया। So external reporting can happen to 2 authorities. One is to society कि ये गलत है, हम इसे ऐसे प्रोसिक्यूट करेंगे. The other is to government, the organization which will aid it. तो आपको पता होगा जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं इन पे एक्सटर्नल ऑडिट भी बैठता है इंटरनल ऑडिट के बजाय, तो कई बार जैसे एक्सटर्नल ऑडिट को प्रॉब्लम होती है, दे रिपोर्टेड टू सेबी. मैम ह्यूमन राइट्स का जब एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होता है, इट हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ रिट्स. हाँ हाँ वही मैं आपको कह रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स का इंटरनल एक्सटर्नल दोबारा दोनों हो सकता है. आप सोचो कि पुलिस ने कॉम्प्रिहेंड करा किसी को, ठीक है, एंड दे आर गिविंग हिम अ 3rd डिग्री टॉर्चर. वन ऑफ द कॉप्स ही फील्स दैट दिस इज नॉट ह्यूमेन, और वो आ जाता है, वो कहता है नहीं यार ये गलत है, एंड ही रिपोर्ट्स टू द सीनियर इंटरनल. मतलब different cases have different agencies working together, but if you have to just see a simple bifurcation, it will happen in this manner. ठीक है, तो पब्लिक को ही होता है या फिर कोई नहीं external में you can even tell the government, the agency which is required to take the step. See, why will whistleblowing happen? When you are नहीं, when you want an action to be taken. गलत तो ऑल अराउंड आवर सोसाइटी होता जा रहा है, हम लोग कितनी चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हैं. इमेजिन दैट कोई बंदा आता है, वो किसी बंदे की गाड़ी पे मार देता है, आप वहाँ पे आई विटनेस हो, डू यू वेट फॉर द पुलिस टू कम एंड टेल कि नहीं मैंने देखा है? नो, बिकॉज अंदर से आवाज़ क्या आती है? नॉट माई सर्कस नॉट माई ट्रबल, मेरा मामला नहीं, मैं क्यों बीच में पढ़ूँ, मैं खामखा अपना टाइम क्यों खराब करूँ, वाई शुड आई वरी, राइट? एंड वॉट डज दैट लीड टू? इट लीड्स टू एन आउटकम विच इज़ नॉट इफेक्टिव. सोसाइटी में एक्सीडेंट्स वुड बिकम कॉमन, इवन क्राइम. जैसे अगर कोई किसी के घर पे किसी की गोल्ड चेन स्नैच करता है, ठीक है, तो पहले व्हाट यूज्ड टू हैपन, पीपल यूज्ड टू रन. अब आप किसी के सामने करो, लोग ऐसे खड़े होकर देखते, वीडियो बनाते हैं उल्टा, वो कहते हैं एक बार भैया स्नैपचैट पे नहीं आया, दोबारा करना. दैट इज व्हाट पीपल डू, राइट? पीपल आर स्टैबिंग पीपल इन मेट्रो स्टेशन. भाई किसी ने किसी को 100 बार चाकू मारा, किसी ने एक बार रोकने का नहीं सोचा, और उसकी वीडियो 20 सोर्सेज से आई. वो कह रहा है भैया थोड़ा साइड से मारना, नहीं ऐसा नहीं बोला, बट उसने रोका भी तो नहीं. एक बंदा है, 2 हाथ है, चाकू ही तो है उसके पास, सड़क पे ईंट पत्थर कितना कुछ होता है, यू कुड हैव स्टॉप्ड,
a life could have been saved. Exactly the point. यही प्रॉब्लम है. जितने भी बिजनेस एथिक्स की बात हो रही है, they are stemming out from personal ethics. Personal ethics are diluting because of the society. We are more now towards individualism. We ask who you are, what you are. We need something called community building. And this is not something which is happening in this metropolitan city called Delhi, or 4 major metropolitan cities. It's happening in tier 2, tier 3 cities as well. Villages में भी people are not that helpful. पहले if you had to go to a village and तुम्हारे पास रुकने की जगह नहीं थी, anyone would give you shelter. Now people are like, भाई कौन रुकवाएगा? कल को कुछ हो जाए किसी को. Community building होती है when you come close together and अरे मैम नहीं, पर आप जैसे हम लोग हैं, all of us come together, ठीक है, and each one of us get a chance to communicate with everyone. This is a community building going on, a lecture. अब आप इमेजिन करो कि आप सब कहीं ना कहीं काम कर रहे हो या काम करोगे, आप किसी अपने क्लासमेट से मिलते हो, अगर आपकी कभी इंटरेक्शन नहीं हुई, वाई वुड यू फील फॉर दैट क्लासमेट, उसका काम हो या ना हो. सर सपोज किसी हॉस्पिटल में मैनेजर है, ही सीज मी, ही सीज कि आई एम वेरी वरीड, ही लाइक सर आप कैसे, आई टेल हिम द रीजन, ही लाइक सर आई हेल्प यू आउट. दैट help you out problem solving is coming from the social bond we share. The social bond came through communication. The communication happened because we were comfortable with each other. अगर मैं क्लास में घुसते ही यहाँ पे गुर्राना शुरू कर दूँ and I start shouting this doesn't happen that, तो लोग पागल है यार, आया भी नहीं शुरू हो गया, right? If I come in and I ask you all to speak and we discuss, you would feel comfortable. Next class तुम और खुशी से आओगे. आज सर को एक जोक सुनाऊंगा, मैं हंसा नहीं, तुम कहोगे सर का सेंस ऑफ ह्यूमर खराब है, but there would be something tangible which you take along with you rather than just the fake promise of spreading knowledge. Knowledge can only happen without fear. Fear can only go with communication. Communication can only happen where you're comfortable. Everything is linked with each other. We plan to discuss ethics. This class is not to tell you ethics. I believe all of you are very ethical. This class is to remind you that there would be a situation where you want to act with impulse, and you should not act in impulse. You should be very mindful about your decision. You should be very conscious about it. क्योंकि हमेशा जब भी पर्सनल गेन और सोसाइटल गेन होगा, यू गाइज और मी और एनीवन वुड चूज पर्सनल गेन. वी आर सेइंग कि डू नॉट जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, थिंक अबाउट इट. इवन दैट कैन ब्रिंग अ चेंज. यू गाइज, अच्छा लेट मी आस्क यू समथिंग. व्हाई आर द सुसाइड हेल्पलाइन देयर? आपने सुसाइड हेल्पलाइंस के बारे में सुना होगा, द डिफरेंट, व्हाई आर दे देयर? अगर किसी को काउंसलिंग चाहिए, हेल्प चाहिए, किसी तरीके के कोर्स से गाइस रीच देम. ये ऐसा हमें लगता है, बट आर माइंड कैन नॉट, गाइस चुप हो जाओ प्लीज. Our mind cannot think about negative thoughts. I'll give you an example. Don't think about elephant. What are you guys thinking about? Don't कह दिया ना. अगर तुम किसी भी ह्यूमन को, एडम ईव, डोंट ईट द एप्पल, भाई वो क्या करेंगे? वो वेट करेंगे तू जा एप्पल तोड़ भाई. That is how the mind works. Even in suicide, a person does not want to take their life. There are extreme cases. उन्हें कोई नहीं बचा सकता.
बट अ पर्सन इज इन टू थॉट्स. अगर उस टाइम उसे कोई बोल देना एवरीथिंग इज ओके, चाहे वो बोले नहीं इट्स नॉट ओके, इट माइंड टेक्स हाँ ओके है, वो कह रहा है ना, सुन उसकी. एंड लाइव्स कैन बी सेव्ड. Similarly, while you are having an ethical dilemma, if you remember something that things can be done differently, you will do it differently. हो ही नहीं सकता कि आप कुछ अनएथिकल कर दो. किसके साथ? जो भी हम करते हैं, हम एथिकली मान लो हमारे को कोई ऐसा सिचुएशन आती है हाँ हम एथिकली बिहेव करें, बट स्टिल अगर एथिकली बिहेव करेंगे उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसे consequences ऑफ कोर्स, फेस करने पड़ेंगे. तो बट वो कंसिडरेशन में लेते हुए ना स्टिल हम चूज करते हैं कि ठीक है विल गो विद द पर्सन. वो तो अनएथिकल के साथ में कॉन्सिक्वेंस. वो तो शॉर्ट साइटेडनेस है ना हमारी. बट रिस्क फैक्टर है तो उसमें पर हमारे पास एक प्लस पॉइंट भी है ना कि बिल्कुल ठीक है, अगर मुझे अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ और मैं मुझे ज़्यादा तो एटलीस्ट मुझे कुछ मिल रहा है, देयर इज सम चांस कि हाँ मेरे को उसको मिलेगा. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. अभी मॉडर्न डे यू वुड हैव सीन कि जितने भी प्रिजन है वहाँ पे खाना अच्छा मिलने लग गया है. ठीक है. आई रिमेंबर देर वॉज दिस पर्सन हमारे घर के पास, ही यूज टू क्लीन कार. तो एक दिन ही वॉज वेरी सैड. मैंने कहा क्या हुआ? तो ही यूज टू लिव नियर जनकपुरी एंड माई प्लेस इज फार. ही इज लाइक के जनकपुरी पुलिस स्टेशन वाले मेरी समझ चुके हैं. तो वॉट यूज टू हैव मंथ्स वेर यूज टू नॉट हैव एनी फूड. वो कुछ चोरी करता था, पकड़ा जाता था और 3 महीने जेल चला जाता था. वहाँ पे उसे अच्छे से खाना मिलता था, रोजगार मिलता था और सोने की जगह मिलती थी और सेफ्टी मिलती थी. ठीक है, मतलब आप सोचो सेफ है वहाँ पे. भाई अंदर जब लोग जानने लगते हैं तब कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. ठीक है. हाँ चोरी बहुत छोटी सी, मतलब किसी की साइकिल चुराएगा, यहाँ से चुरा के उधर रख दी, कैमरा में आ जाए, कैमरा में हाई करेगा कि पकड़ा जाए. एंड दिस पहले जुडिशियल रिमांड में रखते थे उसे, फिर ऐसे होने लगा. तो मैंने कहा अब क्या हो गया? कहता पुलिस वाले समझ गए कि मैं चोरी तो करता ही नहीं, मेरे को तो रोटी खाने जाना होता है. वो मुझे भगा देते वार्निंग देके. आर जेल्स हैव बिकम एक्चुअली रिफॉर्मेशन सेंटर्स. मैं ये नहीं कह रहा कहीं से भी कि दे आर द मोस्ट आइडियल प्लेसेस, बट अगर किसी को पढ़ाई करनी है, किसी को कुछ भी करना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल. क्या? हाँ नहीं, उसके बिना भी these guys are actually talking about कि what did you do. ठीक है. तो हो सकता है कि हमें ना पता हो कि जब हम कुछ अनएथिकल कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिफॉर्मेशन. अगर हम ये बिलीव कर रहे हैं कि कोई मर्डरर की इंटेंट मर्डर की नहीं थी, तो जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है वो भी तो बहुत एथिकल हो सकते हैं ना. गाइस आप एक बात सोचो, यूएसए में लॉबिंग होती है, सब कुछ होता है, वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे करप्शन क्यों नहीं है? जापान में अगर आप किसी बच्चे से उसका फेवरेट फूड पूछो तो इट इज़ सम हेल्दी आइटम, ही वुड से ब्रोकली, समथिंग होममेड. वहाँ पे लोग अपने बच्चों को बाहर का खाना ही नहीं खिलाते. आर वी नॉट फेलिंग एज अ सोसाइटी? क्यों? अगर हमारा बच्चा जैसे नहीं खा रहा होता खाना, आई हैव सीन पर्सनली, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें लोग अपने छोटे बच्चे को लेके आते हैं स्केटिंग के लिए, ये किसी चीज, पता है क्यों? यू वुड बी अम्यूज्ड बाय द रीजन कि बच्चा थक जाए, घर जाके सो जाए. जस्ट दैट. कोई उन्हें अपने बच्चे को स्केटर नहीं बनाना. वो कोच को कहते सर आज 2 राउंड कम क्यों कराए, ये घर जाएगा थकेगा नहीं और जीना आराम करेगा. एज अ सोसाइटी नहीं है प्रॉब्लम. द थिंग इज खुद की लाइफ नहीं यार, मतलब आई थिंक कि सोसाइटी हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव. तो वहाँ पे अर्निंग भी लिव
करना बहुत ज़रूरी है। पहले सेटिस्फैक्शन जल्दी मिल जाती थी, अब आपके आसपास ही हाई राइजेज हैं, सब कुछ है, सोशल मीडिया है, तो आपको काम तो करना पड़ेगा ना। अब 2 साल के बच्चे को तो ये नहीं समझ आएगा ना आपको काम करना है, वो आएगा लैपटॉप को धप, आपका तो हो गया, तो आप क्या करोगे? कहो 1 घंटे तो एक्सरसाइज करा के लाती हूँ। फूड में भी यही होता है, जब बच्चा नहीं खाता हेल्दी, हम क्या कहते हैं, बेटा फ्रेंच फ्राइज खा ले। नहीं होता तो आजकल उसके सामने टीवी रख देते हैं, वो मोबाइल पे ऑगी एंड द कॉकरोचेस। फिर वो जब तक तुम्हारा सिर की नसें नहीं फाड़ लेता तब तक वो खाना नहीं खाता, बिकॉज वी आर फाइंडिंग ईजी वे आउट। वॉट एवर इज ईजी विल नेवर बी द बेस्ट। ये सिर्फ ऐसे लगता है, बट विच एवर कम्स ईजीली ना। तुम ये सोचो, तुम्हें फ्री का खाना कौन देता है? जब कोई फ्री में खाना खिला रहा होता है उसका कोई रीजन होता है, इज इट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी? एनीवन जिसको आज तक सुशी सर्व करी गई हो फ्री में? नहीं हो सकता, आप जापान जाओ, वहां के लंगरों में सुशी मिलती होगी, यहाँ के में नहीं मिलती भाई। यहाँ पे जो स्टेपल डाइट होगी वही मिलेगा, राइट? सो द सेम थिंग गोज कि जब आप एथिकल कंसिडरेशन भी करते हो तो उसकी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी, बट इन द लॉन्ग टर्म इट वुड बी वर्थ इट। कमिंग बैक, one of the major issues faced by today's world is data privacy and security. Do you believe customer data is secured? What is the problem with customer data? लाइक हमारा ना सोन का जो है ना डाटा, वो कोई इंटर पाठशाला करके है, वहाँ पर गया होगा हमारा। क्यों? वो हमारा वहाँ पर से, वहाँ से हमारे पास आता है कि एसओएल ने ये आपका ये कर रखा है, एंड देन वो लिखा हुआ आता है, बस उन्होंने शायद से कमांड। The government has divided data into 2 categories. One is sensitive data and the other is non-sensitive data. Sensitive data again has been divided into 2 categories, financial data and medical data. Non-sensitive data would be your incomplete information, मतलब आपके नाम, आपका परचेज बिहेवियर, या आपका एड्रेस, या आपकी ईमेल आईडी। सेंसिटिव डेटा वुड बी फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट्स, बैंक डिटेल्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स। What is the problem with sharing information? स्कैम। सर स्कैम करेंगे, फ्रॉड करेंगे, और आपको एड्रेस जा रहे हो? नहीं नहीं ठीक है। थैंक यू। हाँ बाय। गाइस क्वाइट, गाइस एक अभी रिसेंटली रतन टाटा जी की डेथ हुई, ठीक है, प्लीज सब सुन लें। सब लोगों ने, पूरे इंडिया में जितने भी लोग थे जिन्होंने उनसे पर्सनली बात करी या नहीं करी, सब लोग ही सैड थे, ठीक है। उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्टेड कि कोई भारत रत्न दे रहे हैं, कोई गवर्नमेंट कैसे कर रहा है। डू यू द ओनली रीजन वाई ही वॉज गिवन सो मच रिस्पेक्ट वॉज बिकॉज ऑफ एथिक्स। भाई हमें नहीं पता, किसी को कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो सकता है, चिली पोटैटो खाना भी इम्पोर्टेंट है। वी आर नो वन टू जज एनी वंस हंगर, हार्ट वॉन्ट्स वॉट इट वॉन्ट्स। अच्छी बात है, इट्स गुड। सी द रीज़न वाई आई थिंक कि इस सब्जेक्ट की क्लासेस सिर्फ ऑफलाइन करी जाती हैं इज दैट वी कैन इंटरैक्ट।
ठीक है, वी कैन नो ईच अदर टेक्स ऑन एथिक्स। आप कभी भी देख लेना, 4 मेजर स्टेजेस होते हैं लाइफ में जब एथिक्स सिखाए जाते हैं। जब बच्चा प्राइमरी में होता है तब मॉरल साइंस की क्लास होती है, क्योंकि वो प्राइमरी से जब सेकेंडरी में आता है तब मेजर चेंज होता है, दिस अ चेंज इन मेच्योरिटी। जब वो सेकेंडरी से 11th में जाता है विच इज़ कॉल्ड द हायर सेकेंडरी, देन देयर इज अ चेंज, एंड व्हेन ही कम्स टू कॉलेज, दैट इज इट। इसके बाद कभी कोई भी आपको एथिक्स नहीं सिखाएगा, बिकॉज सिस्टम भी मान जाता है कि अब नहीं सीखा कभी नहीं सीख सकता, खत्म, राइट? बिकॉज विथ सर्टेन एज यू विल बिकम मोर रिजिड, थिंग्स विच हैव वर्कड फॉर यू, आपके पास ज़्यादा डेटा पॉइंट होगा उसे बिलीव करने का। अब मैं यहाँ पे आपको बोलूँ ऑनेस्टी इज़ नॉट द बेस्ट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हर बार अब जब भी ऑनेस्ट हुए अपनी क्लास में, आपको किसी ने रूलर मारा हाथ पे, तो आप शायद मेरे फेस पे ना बोलो, बट आप कहोगे पागल है, कौन सी बेस्ट पॉलिसी? सोचो आप रेड लाइट जंप कर रहे हो, आप में से कोई है जो ट्रैफिक पुलिस वाले के पास रोक देता है? येस्टरडे आई सॉ, जोमेटो वाला था, उसने रेड लाइट जंप करी, 4 ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे, वो रोका भी नहीं, उन्होंने रोक दिया, क्या सर चलान काट दो। वो बेचारे ऐसे हो गए, क्या हो गया इसे, उन्होंने उसका कुछ नहीं काटा चालान वालान। दे आस्क्ड, दे सर, ही टोल्ड दैट हिज फादर मेट विद एन एक्सीडेंट, उसे पता नहीं था पर गलती तो उससे हुई है, एंड ही शुड बी फाइंड फॉर इट, एंड दे वर वेरी स्वीट विद हिम। एंड हो सकता है हमारा एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब भी आप कहते हो कि somebody had been rude with me और ये है, उसका मेन रीजन सिर्फ वो बंदा नहीं होता, आप भी होते हो। इफ यू आर काइंड, यू आर generous enough, it can never happen that somebody would be not kind with you. What are cyber security threats? One is the scams which are going on. What other threats are we talking about? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे एक साइबर अटैक हुआ था, वेयर डेटा फ्रॉम मेजर हॉस्पिटल्स वाज टेकन अवे, एम्स, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल के सर्वर्स भी हैक करने की कोशिश होती है। व्हाई डू दे वांट मेडिकल डेटा? जस्ट इमेजिन, इफ दिस इज दिल्ली, ठीक है, और गाइस प्लीज डोंट टॉक एट द बैक। Suppose this is Delhi and these dot represent people with respiratory disease. This data would be available in medical data. You are a company X, you want to enter into this field. अब जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनी होंगी उनका जो मार्केटिंग कैंपेन होगा वो कंप्लीटली दिल्ली को इनगल्फ करेगा, बट डेटा इज क्लियरली शोइंग कि जो आपका मोस्ट अमाउंट ऑफ कस्टमर्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। This company X can easily target this area, which would make company X cost effective, and in the long run it would be able to outrun every other company because it has a higher profitability. That is why medical data is very important. This is the commercial aspect. Now think about a bio attack. You know that these days the warfare is not nuclear anymore. It is chemical and bio warfare. A person releases a virus which actually affects respiratory system. उसे कहाँ पे रिलीज करना चाहिए? जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं. That would be an easy carrier system, right? That is why medical data you cannot even store in an outside server.
मतलब अगर कोई भी फर्म मेडिकल डेटा गूगल सर्वर पे भी स्टोर कर रही है, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड, क्योंकि गूगल के सारे सर्वर्स इंडिया के बाहर है. Medical and any sensitive data has to be stored within servers in the country and they cannot be stored in one layer. मतलब it has to be stored in bits and pieces. कि अगर एक जगह पे कोई हैक कर भी ले तो दूसरी जगह पे उसे पता ना चले कि वो है क्या. They are not able to correlate. ठीक है. Then you have something called ethical data handling. ठीक है. Using data responsibly and ethically, avoiding misuse, manipulation that could harm individuals or compromise privacy. Do you think ethical data handling is happening in India? Is the data being handled ethically? आधार का डाटा उस पर डार्क वेब डार्क वेब पे है या दो सर्वर्स आर हैक्ड मल्टीपल टाइम्स और आज तक पता नहीं है कि वो हैकर्स एग्जैक्टली चाहते क्या है. लाइक ऑफकोर्स दे क्रिएटिंग स्कैम्स, गवर्नमेंट पे लोन लिए जा रहे हैं आधार डेटा पे, दैट डेटा इज बीइंग यूज्ड. अगर आपको डेटा मिस हैंडलिंग की एक्चुअल में देखना है, आई थिंक एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जहाँ पे एक पेरेंट्स थे, उन्होंने अपनी बेटी का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, वो 2 या 3 साल की थी. हैकर्स यूज दैट डेटा to create how she would look 16 years बाद. They created videos objectionable using that face. They made an account and they were earning money. And वहाँ पे publicly उन्होंने अपने, जैसे हमारे यहाँ पे तंबाकू की ऐड चलाते हैं, उन्होंने वो वीडियोस चलाई where that kid is talking to her parents. 19-year-old जैसी वो दिखती वो वाली बच्ची बात कर रही है, saying के पेरेंट्स प्लीज बी माइंडफुल अबाउट द इंस्टाग्राम एंड द इंफॉर्मेशन यू शेयरिंग. Like all of us share pictures on Instagram, we share our location. But somebody knows, somebody is able to access every information available. What if they plan to misuse it? How are you going to stop it? क्या? अरे अकाउंट को प्राइवेट भी रखोगे तो इंस्टाग्राम पे सपोज 10,000 वो है एम्प्लॉयज़, 500 कोडर है, 500 कोडर के पास तुम्हारी सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, सारी. उन्हें पता है कि आप क्या कर रहे हो, उन्हें पता है कि आप कितने सेकंड कौन से पेज पे हो. जो उनका उसी तरह से तो वो हमारे को अट्रैक्टिव होते हैं, रिकमेंड्स करते हैं. हाँ, जो आपका इन्फिनाइट सर्च अलॉग्रिदम है उसका मतलब ही है आप आज एक केक के पेज पे अकाउंट खोल के 1 घंटे बैठ जाओ, आपका पूरा पेज पे सर्च वो डिस्कवर पे केक्स ही आएंगे. So you understand कि data is being mishandled by everyone. And then we talk about compliance. Compliance का मतलब यही होता है कि आप legally you are more secure and more effective. ठीक है? The other problem is environmental responsibility. ठीक है? There are two problems. A, sustainable practices. Why are we talking about environmental responsibility in ethical dilemma? icebergs are melting. Very true. Very true. Please. है कौन सा रिसोर्स है जो लिमिटेड है? कौन सा? Air, water. Drink enough potable water. Coal. How much coal and petrol are being used daily? Soil will
I completely believe everything is limited. But do we believe as a world that we are in a limited resource environment? The most important resource. मतलब अगर गाड़ियों में पेट्रोल ना हो तो भी आप चल सकते हो. It can work. Car is a 200-year-old phenomena. उससे पहले भी लोग खुश थे घोड़ों पे. पानी के बिना तो कभी भी नहीं जी सकते. On average, the denim you wear requires 10,000 liters of water. On average, your car is using almost 300 liters of water for cleaning. And people are not stopping. आप सबको पता है दिल्ली का ग्राउंड वाटर का क्या लेवल है. Nobody is stopping. Tell me one household जहाँ पे समर सीवर नहीं लगवाना चाहते लोग. 5,000 10,000 की ड्राइविंग हो जाता है. ब्राइब रात रात को वो प्लम्बर को रात रात को बुलाते हैं कि भाई तू रात को लगा दे 10,000 भी बचेंगे. Depending upon the area. That is when you're conscious about that water is required for survival. बिना पानी की तो जी ही नहीं सकते. धरती पे हीरा हो या ना हो, सोना हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता. पानी और खाना तो चाहिए. And what are we doing? We're destroying our crops. Yes, ma'am. You had an example. Sir, in Jharkhand, we have the biggest example. We have so many mines of different minerals. But there is a situation where इतनी ज़्यादा mines बना दिए हैं कि वहाँ का जो environment है, जो places है, वो बहुत ज़्यादा sink हो रहे हैं. And the people, the native people are not able to live there. But जब वहाँ पे माइन से जब निकाले गए मिनरल्स तो वहाँ पर किसी ने सस्टेनेबल प्रैक्टिस के बारे में नहीं सोचा था. इट इज़ लाइक 50 year older person. बट द इफेक्ट इज नाउ इफेक्टिंग द पीपल. बट अगर वहाँ पर प्रैक्टिस की गई होती सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मिनरल निकालने के बाद माइंस को डिस्पोज कर दिया गया था, माइंस को सेटअप कर दिया गया था, लैंड को ठीक किया गया था, तो आज वो प्रॉब्लम नहीं होती. बट इन झारखंड वी कैन सी देयर आर मेनी एरियाज वेयर पीपल आर नॉट एबल टू लिव इन देयर हाउस बिकॉज वो क्रैक हो रहे हैं, सिंक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा. एंड इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस जो करना था वो हो गया, बट जो इन्वायरमेंट है वो वहीं के वहीं. The same thing has happened. Guys, sustainable practices की बात करोगे आप तो one good example is green revolution. That was such a unsustainable practice. They the crops they were pushing for were wheat and rice. उन्होंने उन स्टेट में राइस पुश कर दी जहाँ पे राइस के लिए पानी लेवल ही नहीं था. What did it lead to? Contamination of water. To increase the productivity, fertilizers were used. What are you trying to say? In any business, if there are no sustainable practices, the business will not work. Any production requires raw material लाओगे कहाँ से? If the debate is between productivity and efficiency, you should aim for efficiency. How effective will the policy be? So we are talking about two heads. One is pollution control, one is sustainable practices. We need to work in combination of both. Not only we require sustainable practices, but we also require to control the damage we have done. Right? Third, social responsibility. What do you guys understand by social responsibility? Why is community engagement important? What do you mean by community engagement? We just discussed it.
सर व्हाट इज़ द इशू? नहीं, अगर यू गाइस आर नॉट इंटरेस्टेड यू फ्री टू लीव. आप लोग प्लीज़ पढ़ाने दो. आई अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट म्यूजिक टू योर ईयर्स, दैट इज़ ओके. अगर आओ ना आगे बैठ जाओ. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ क्लास. वैसे भी अटेंडेंस आपके यहाँ तो मैंडेटरी नहीं है. Guys, how do you build community? By communication. Have you heard about called Run Club? So every Sunday near India Gate there is a group of people, they come together to go for a run. It's just a 3 kilometer, 4 kilometer run. But that club today has more than 1 lakh participants. So last time when they were conducting this run club, the police had to come and they had to talk about safety. क्योंकि अगर 1 लाख लोग एक जगह पे हैं and they're doing some activity, then it becomes a great measure of safety. Similarly, you will hear about book clubs. You will hear about different oratory clubs. ठीक है. So depending upon your personal choices, you can have different clubs. ठीक है. Which can help you to grow as a community. The main task of community building is to foster the bond. कि आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें. ठीक है. And you know each other. And you guys become socially responsible. The second thing is diversity and inclusion. Our community, is community engagement, diversity and inclusion different things or they're the same things? See, this diversification could be economical, it could be social, ठीक है, or it could be based on the profession. By economical I meant income status. By profession I mean that all the doctors come in and they think about having a program to check people for free, the camps. It could be every athlete comes in and they tell about fitness, ठीक है. So community engagement, like diversity and inclusion is a precursor to community engagement. अगर आप चाहते हो कि community engagement हो तो आपको diversity और inclusion enforce करनी पड़ेगी. ठीक है. Third point in this is fair labor practices. Why do we require fair labor practices? What is the main reason कि पहले जो women थी, they were not entering into the labor force, and these days so many women are entering into labor force? Is safety and comfort not the primal reason? Comfort से मेरा मतलब ये नहीं है कहीं से भी कि women want more facilities. By comfort I meant they want flexible timing, because they have other responsibilities to take care of, which are ideally not even their responsibility, which are collective responsibility. But those collective responsibility are taken by these strong women, and that is why they require a flexible timing. ठीक है. That's why you would see all the laws and compliances coming in this field. Maternity leave, ठीक है, working options, child care. There are n number of things which have come, and that has led to increase in women participation in the labor force. Of course, जब women ज़्यादा participate करेंगी, productivity increase होगी. Your utopian idea of high GDP would also be realized, right? Why did we call the utopian idea high GDP? Because अगर आपके पास जितनी भी लेबर फोर्स है वो बहुत प्रोडक्टिव हो गई तो आप जीडीपी सिर्फ एक लेवल तक इंक्रीज कर सकते हो. आफ्टर दैट यू वुड रिक्वायर न्यू इन्फ्लक्स ऑफ न्यू ब्लड,
and that blood is coming from the community building exercises by women participation. ठीक है. The other thing is transparency and accountability. If we want to have an ethical workplace, we want an open communication system, we want ethical reporting, and we want someone taking responsibility. When can there be an open communication system? And does it depend upon the organization? सबके बिल सब चेक करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, बट हाँ मोस्ट बिल चेक हो जाए. See, we are saying we want an open communication system which will be, covering all the stakeholders. The stakeholder you have will depend upon the business you are in. For example, you are in an education business. The stakeholder is student, major stakeholder. Suppose you are in a business where you are actually in a mutual fund trader. Your stakeholder are all the clients. That clientele will not only come from a student body, they can be from every working professional who has invested in. तो ये open communication will depend upon the organization. Open communication का कभी मतलब ये नहीं होता कि आप सारी information disclose कर दो. For example, a mutual fund organization might be earning 110% return और वो सिर्फ 30 दे रही हो, तो ओपन इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि आप बोल दो हम तो 110 कमाते हैं. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. बट ओपन कम्युनिकेशन मीन्स कि अगर आपसे कोई गलती हो गई या आपसे इन्वेस्टमेंट में कोई एरर हो गया, यू आर एबल टू टेल इट. बीइंग कंफर्टेबल, बट कंफर्ट में ज़्यादा भी तो नहीं बोल सकते. अब मैं यहाँ पे हो जाऊँ आपके साथ कंफर्टेबल, मैं कहूँ मेरे दादा ये करते थे. ओपन कम्युनिकेशन बट नॉट रिक्वायर्ड. Open communication also has to happen under the lines and the boundaries set by you. Right? None of us like someone who speaks a lot. You're like, भाई क्या बोल रहा है? There has to be sense to it. See, communication is done so to align thoughts. Chip chap, chup chap, मतलब I don't understand the whole point. No one does. अगर जैसे मेरी कंपनी है, मैं आपका पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, तो आई वुड कम्युनिकेट वॉट कि आई विल मेक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड गिव यू हाईएस्ट रिटर्न. दैट इज इट. ऑफ कोर्स लीगली. अब उसमें मैं कितनी फी ले रहा हूँ, मैं कितना कर रहा हूँ, दैट इज नॉट योर कंसर्न, बिकॉज टू एक्सप्लेन यू दैट इट वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी विच इज नॉट रिक्वायर्ड. सेकेंड इज एथिकल रिपोर्टिंग, providing accurate and transparent financial and operational reporting. कहाँ पे do you guys have any example जहाँ पे ethical reporting ना हुई हो? हाँ, सत्या कंप्यूटर. ओके, what else? क्या? Okay. In different scam where companies are declaring their NPA is not payable, they are actually having a case of ethical reporting. True. वहाँ पे they are not telling and they are not disclosing their account statements. This should not be the case. क्योंकि one ethical scam will lead to another ethical scam. फॉर एग्जाम्पल, सपोज उन्होंने येस बैंक का एग्जाम्पल लिया. जब येस बैंक के साथ ये हुआ, सारे प्राइवेट बैंक को स्क्रूटनाइज किया गया. लोगों ने मेजर प्राइवेट बैंक से अपना पैसा निकाल लिया. ऐसा भी हो सकता है कि बाकी बैंक सब कुछ सही करे पर उनके पास पैसा ना हो देने के लिए बिकॉज ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, एंड दैट कैन लीड टू अ बैंकिंग क्राइसिस. सो एथिकल रिपोर्टिंग इफ नॉट डन वेल कैन लीड टू अ क्राइसिस.
and one should be very mindful of it. Number third, taking responsibility. Taking responsibility means acknowledging, taking responsibility, mistake and ethical breaches. इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, सपोज आप क्लास है, यू गाइज वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग विद मी कि इस दिन क्लास मत दो, देन यू विल सेंड योर 1 CR, ही विल टॉक कि सर ऑन द बिहाफ ऑफ द होल क्लास आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ये हो रहा है. एवरी वन रिक्वायर्स अ गुड लीडर. दैट इज़ वाई जब भी कंपनी का CEO या कोई भी चेंज होता है तो कंपनी की वैल्यूएशन भी चेंज होती है. जब भी कंपनी का CEO चेंज होगा वैल्यूएशन चेंज होगी. Let's understand few elements of corporate governance. Number 1, ethical leadership. Number 2, board oversight. Number 3, compliance program. Guys, give me a 2 minutes break. सर कहाँ जा रहे हो? बैग के साथ? गाइस, जब तक ब्रेक है प्लीज just think about how important is ethical leadership. Think about cases where there was a brand or a company which was existing, but due to a bad leadership the company faced a lot of repercussion. क्या क्या हुआ उसमें? क्या? तो उसमें हुआ क्या था? सर ओला इलेक्ट्रिक में सर्विस लोगों ने जिन्होंने खरीदी थी उनमें प्रॉब्लम्स आ रही है. अच्छा. लोग उसको सर्विस सेंटर पर लेके जा रहे हैं. हाँ. वहाँ पर वो बैकलॉग्स इकट्ठी हो रही है लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है. अच्छा. और फिर सोशल मीडिया पर इसके कुछ ट्वीट्स हुए इसके बारे में. क्या? हाँ, I saw that video. See, when guys, एक मिनट शांत. I had a lecture before this also. My throat is gone. Please. Ethical leadership. Ethical leadership is very important. अगर we have to see it from two perspectives. Number one, when you see it from a perspective of a company, ठीक है,
आपकी कंपनी में आपका जो लीडर है वो एथिकल नहीं है. Ethics always come like a fountain. It's a cascading effect. It's a top down approach. अगर वो इफेक्टिव नहीं है, वो एथिकल नहीं है, आपकी पूरी कंपनी का ऑपरेशन डिसरप्ट होंगे. सिमिलरली इफ यू कम टू गवर्नेंस, योर लीडर इज नॉट एथिकल, योर पीएम, योर प्रेसिडेंट इज नॉट एथिकल, they will push you into a war. That could be a trade war, that could be a physical war, and that will of course have negative impacts. War एक बंदे की वजह से जाता है बंदा, और जो उसका इम्पैक्ट होता है सब लोग लेते हैं. सिमिलरली कंपनी में एक बंदा होता है जो गलती करता है, पर उसका इम्पैक्ट पूरी कंपनी सफ़र करती है. अगर किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, दे वुड नॉट हैव द मनी. Second is board oversight. Always choose a good board. How do we define a good board? Directors, board of directors. Vision. What else? Good strategy, good goal. Good goals. And the board should be ethical in terms of communication, in terms of policy. जो उनकी पॉलिसी होनी चाहिए वो अनबायस्ड होनी चाहिए. कई बार आपके लीडर बहुत अच्छा होता है पर आपका बोर्ड उसे कुछ भी नहीं करने देता. उस केस में जो आपका बोर्ड है दैट एक्ट्स लाइक अ शैकल, बेड़ी. आपका लीडर वांट्स टू वर्क बट योर बोर्ड इज सेइंग कि नहीं. बोर्ड एक्चुअली डिसाइड्स कि कितना पैसा कंपनी को जाएगा और कितना पैसा इंडिविजुअल पॉकेट्स में आएगा. जैसे एप्पल का जो बोर्ड है दैट ऑलवेज वर्क्स in favor of R&D. Apple has $400 billion of research fund. सर कर क्या रही है? है क्या कह रही है The problem is that their leader is not there. Steve Jobs was a visionary. Without a vision, a tech company cannot work. उसके बिना भी they have created a mass market. आज कोई भी बंदा अगर लग्जरी करता है, people are using Apple as a proxy for wealth. When they go out on first dates, they are like कि Apple लाया लड़का तो अमीर होगा. Right? Jewelry has always been a proxy. Few people will go, गले में चेन पहन के मोटी सोने की गाड़ी, but all of these are not proxy. मतलब they could be right, they could be wrong. Real money does not come from what you wear, what you drive. It comes from what you own. Right? Like when we say Mukesh Ambani is the most powerful person in India, कोई वो physically सबसे powerful थोड़ी है. He has resources which can cause a lot of problem. This. Number third is compliance program. We should always have a strong compliance program so that there is no ethical violations. What should be the elements of a compliance program to avoid ethical violation? It should be easy to comprehend, it should be sustainable, it should be easily applicable, and it should have accountability. कि अगर कोई गलती हुई है तो you are able to choose कि किसने करी है. If it does not have these four elements, it will not be robust. और अगर robust नहीं होगा, there will be ethical violations. Intellectual property. Why is intellectual property required? Why is it important? जिसका आइडिया है, जिसने बनाया है, उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिल सके. True. ठीक है. वेरी ट्रू. इमेजिन अ केस कि आप लोग एक बहुत बड़ा घर खरीदते हो, पर अगले दिन कोई आ जाता है और वो बोलता है कि निकल जाओ, ये मेरा है. विल यू बाय अ हाउस? तो जब आपको चाहती थी गवर्नमेंट कि आप घर खरीदो, तो उन्होंने डिफाइन क्या किया? प्रॉपर्टी राइट्स.
जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी पॉपुलेशन इनोवेट करे और ग्रो करे, व्हाट डू दे डिफाइन? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. नो इनोवेशन कैन हैपन विदाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. जिस बंदे ने पेनिसिलिन डिस्कवर करा वो यूरोप का सबसे रिच बंदा हो गया था नेक्स्ट 10 ईयर्स में, क्योंकि उन्होंने पेनिसिलिन पे विच इज यूज टू हेल्प विद वायरसेस एंड बैक्टीरियाज एक्चुअली प्रॉपर्टी राइट ले लिया इंटेलेक्चुअल, तो नो फार्मा कंपनी कुड यूज इट. तो whenever you would want innovation and production in your economy, you will actually define intellectual property. We have defined intellectual property, ठीक है, patents, copyright, trademark, ठीक है. Employee must understand the importance of not infringing on the intellectual property of others and safeguarding the company's own intellectual property asset. बट सर लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए See, life saving drugs के लिए there has been a very big argument. Should we have intellectual property rights? Should a company get, जैसे Lilly एक company है, they work in the field of endocrine. They make drugs for endocrine majorly. वैसे भी होना था, it's a very big pharma company. But their argument is कि जब भी हम research करते हैं, it takes 30-40 years. It takes a lot of money. How can we give it for free? We have to have that money. मतलब इमेजिन करो कि आपको कोई कार डिज़ाइन करने में 15 साल लग गए, तो आपके 15 साल की मेहनत, रिस्क, सब कुछ है ना. तो वो कह रहे हैं कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक काम करो, हमसे ले लो, 50 साल बाद ले लो. 50 साल तक तो उसकी कोई जेनरिक मेडिसिन नहीं बनेगी. दैट इज़ वाई यू वुड सी अ लॉट ऑफ मेडिसिन डू नॉट हैव जेनरिक. और कुछ कंपनीज की जब जेनरिक बनती है तो और भी सस्ती बनती रहती है. जेनरिक की भी आगे एक और अच्छी जेनरिक बनती है. दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर. एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर सेज engaging in fair competition and avoiding practices that stifle innovation or harm consumer. This includes refraining from price fixing, bid rigging, and other competitive activities that undermine market integrity. Employee must understand the legal and ethical boundaries of competition. Do you believe this is happening right now? स्पेशली इन कम्युनिकेशन मोबाइल कम्युनिकेशन में तो हो ही नहीं रहा. ठीक है, लेट अस कम टू सम अदर फील्ड. लेट अस कम टू FMCG. We have two giants, soft drink giants, both in India. ठीक है. Do you think that they are not setting their prices and they are not creating a cartel based on this? Do you think that they have an anti-competitive behavior, or you think they have a very competitive behavior? वो कंपटीशन नहीं मान रहे एक दूसरे को. गाइस, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी दो ब्रांड्स का कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है या नहीं है, वो चेक करना कि वो मेजरली जो एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो मेजरली जो प्राइस रख रहे हैं प्रोडक्ट का, वो कैसे रख रहे हैं. ब्रांड का दो काम होता है, एक अवेयरनेस, दूसरा सेल करना. अगर वो इन दोनों काम में ही कंपटीशन को फॉलो कर रहा है, जब भी कोका कोला या पेप्सी की ऐड होती है, दे आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर डाउन. देयर कैंपेन्स इन द पास्ट हैव ऑलवेज बीन अबाउट लेटिंग ईच अदर डाउन. बट सर वो प्राइस वॉर तो नहीं कर सकते ना, मर जाएंगे वो. प्राइस वॉर वो कर नहीं सकते, पर वो प्राइस अपना हमेशा आसपास रखते हैं दोनों. नहीं, पर वो वैसे प्राइस वॉर में घुसते नहीं है. दे बिलीव प्राइस वॉर में कभी भी दो बिग फर्म्स नहीं घुसेंगी, दोनों का सिर्फ नुकसान होगा. बिकॉज दे कैन अर्न मोर मनी इफ दे डोंट एंटर इनटू अ प्राइस वॉर. ठीक है, वी आर सेइंग if we want an ethical behavior, they should follow the principle and they should not get into price fixing, bid rigging, ठीक है, or any corrupt activity which happens.
Dealing with unethical behavior. How do you deal? Number one, you recognize, you identify and acknowledge the unethical behavior within the workplace. Number two, you report it. You report the observed unethical action through appropriate channel. Number three, you respond. Responding effectively to the reports of unethical behavior and taking appropriate disciplinary action. How do you build an ethical culture? कैसे? What should an ideal ethical work culture look like? It should be unbiased. How can you ensure to make it unbiased? Okay. Okay. Are you guys aware that there are startups which have a non-spouse clause? There are startups जहाँ पे there is a rule कि अगर आप बहुत high level पे हो, your spouse or any family member who is directly related to you cannot work in the same startup. That could be a method to create it unbiased. What else? How should an ethical work environment look like? अनबायस्ड एक है और आप कैसी जगह काम करना चाहोगे? गिविंग पीपल इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अ सबसेट ऑफ अनबायस्ड. ओके. फेयर प्रैक्टिसेस. हाउ कैन यू इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस? सैलरी. ओके. जैसे कि आपने डिजिटलाइजेशन वाला बताया था कॉन्सेप्ट, अगर हम जानते ही नहीं मतलब अनबैच भी नहीं पाएंगे, दैट कैन बी Okay. A place which is comfortable, where everyone's thoughts are kept. ठीक है. What else? Employee centric. Right. Do you feel any organization which is having these elements? Which is unbiased, honest, credible, accountable, trustworthy, employee centric? Tata. One. Any other organization? Guys. क्या? HUL. See, major brands which are running. Major brands which are running, they would have most of the elements. They might not have all the elements. It is very difficult for any brand to have all the elements of it. Because being fair, being unbiased, all of them are very subjective. तो ये तो सारे employees मिलके बताएंगे ना. अगर there is a faction or a group of people who don't believe that Tata is unbiased, Tata group of companies, so it will come as biased. But most of the people believe that. So in terms of brands, you will see that most brands have it. Tata has more number of traits than any other. ऐसा नहीं है कि जो Reliance है उसमें ये traits नहीं है, वरना लोग Reliance में काम क्यों करेंगे? हो सकता है कि वो एम्प्लॉय सेंट्रिक है, बट इट इज नॉट एबल टू टच एवरी पॉइंट ऑफ एम्प्लॉय सेंट्रिज्म. ठीक है, दैट इज हाउ इट इज डन. Ethical decision making frameworks. We had talked about deontology, utilitarianism, egoism in our previous classes. ठीक है, we are saying that these frameworks provide a structural approach to evaluate different course of action
and their ethical implication, promoting self-reasoned and justifiable choices. Of course, we have already studied what is the importance of ethical leadership. The last point of this slide is to understand different case studies in business ethics. ठीक है? We would like class खत्म करेंगे इस पे. Before we end our class, guys, whenever you write paper on business ethics, ethics is not something कि आप कुछ भी लिख के आओगे तो ठीक मान लिया जाएगा. You have to give a approach. जो मैं क्लास में यूटिलिटेरिज्म, ईगोइज्म और डिफरेंट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव डाल रहा हूँ, वो इसलिए डाल रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो जस्टिफाई भी तो हो सके. इफ़ यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई, इट विल बी योर व्यू. It would not be something, you know, which will be taken as a gospel truth. It would be your perspective. Please give approaches. Take it a bit seriously. Thank you. Can I have the attendance sheets? सर मैं एक बार पेन ले लूँ.